Welcome to the yet another session on subject computer networks. The topic of today's discussion is longitudinal redundancy check. We have already discussed the concept of the redundancy. Redundancy means adding the duplicate bits to the data word and making it the code word. Or we have already discussed that there are four methods of redundancy. And these methods are VRC, vertical redundancy check. This is also known as parity check that we have discussed yesterday. Yesterday we discussed this vertical redundancy check that is also known as parity check. Today we will be discussing longitudinal redundancy check. And in coming lectures, we will be discussing CRC and checksum. So in longitudinal redundancy check, a block of bits, it means the actual data is divided into tables or matrix of rows and columns. Now, in order to detect what we do, we use to add the redundant bit to every column and transmit that calculated redundant bits with the actual data. So formally, we can say in order to detect the error, a redundant row of bits is added because you have already divided the data word into rows and columns. So what you will be doing, you will be calculating the redundancy bits of all the columns और यहाँ पे आप लिखते जाओगे and then what you will do, you will add these redundant bits to the actual data. तो अब आपका actual data था ये 10101001. सबसे पहले आपने इसको divide किया in the form of matrix. So because 8 bits थी तो मैंने 4 bits किए, दो rows बना ली. तो matrix create करने के बाद then I will calculate the redundant bits मैं column wise calculate करूंगा like this और वापस इन redundant bits को add कर दूंगा with the actual data and will transmit this to the receiver. So ये था आपका data word, ये था actual data, these are the redundant bits and the combination of data and redundant bits are called code word. So then I will transmit this code word to the receiver. So on the receiving side, the receiver will again divide the data into the form of matrix and will calculate the redundancy bits by itself. Then it will match the redundant bits with the received redundant bits, and according to the result, it will accept or reject the data. तो अब देखते हैं इसकी एक example देख लेते हैं. For an example, if we have a 32 bits, so if we have 32 bits to be transmitted, first of all, what we will do, we will divide these 32 bits into the form of a matrix. तो 32 bits थी, हमने 8 bits each row में इसको रख के total rows create कर दी 4. तो ये था actual data. Actual data को अब हमने divide कर दिया in the form of matrix, means in the form of rows and columns. तो जो पहला ब्लॉक था उसकी पहली रो बनी, फिर दूसरे ब्लॉक की दूसरी रो बना ली, तीसरे ब्लॉक की तीसरी रो बना ली और फोर्थ ब्लॉक की फोर्थ रो बन गई. तो इट मींस हमने सारे एंटायर डेटा को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, 4 रोज में डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड करने के बाद वी विल कैलकुलेट द रिडंडेंट या पैरिटी बिट फॉर ईच कॉलम. तो जो कैलकुलेशन होगी रिडंडेंट बिट की वो रो वाइज नहीं होगी, इट विल बी कॉलम वाइज. अगर रो वाइज करते हो तो इसमें आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक रो में जो आपका एक ब्लॉक है वो सारे का सारा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक बिट आएगी. तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, ये तो फिर वही मैकेनिज्म बन जाएगा पैरिटी चेक वाला. लेकिन अब आपने इनको रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और जो पैरिटी बिट कैलकुलेट करनी है इट शुड बी कॉलम वाइज.
तो उससे फायदा क्या होगा, आपकी हर रो की पहली पहली बिट के लिए अलग पैरिटी बिट होगी। तो इससे आपका जो बस्ट एरर को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमने रो वाइज पैरिटी कैलकुलेट नहीं करनी, द पैरिटी विल बी कैलकुलेटेड एज कॉलम वाइज। तो नंबर ऑफ हमने बिट्स कैलकुलेट करी, पहले कॉलम में इवन थी, हमने 0 ऐड कर दिया। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ बिट्स थी ऑड, हमने 1 ऐड कर दिया। तो तीसरे में अगेन नंबर ऑफ वंस आर इवन, 0। नंबर फोर्थ में, कॉलम नंबर 4 में अगेन नंबर ऑफ बिट्स आर इवन, वंस आर इवन, 0। तो कॉलम फिफ्थ में आपके पास फिर से वही ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो आपने 1 ऐड कर दिया। तो ये सारी पैरिटी बिट्स को कैलकुलेट करने के बाद आप वापस इस मैट्रिक्स को स्ट्रीम बिट की फॉर्म में ले आओगे और इसको ट्रांसमिट कर दोगे। जो पैरिटी बिट का रो आपने कैलकुलेट करी है, दैट शुड बी एम्बेडेड टू द लास्ट ऑफ द डेटा। क्योंकि जब हम ट्रांसमिट करते हैं, हम करते हैं डेटा प्लस रिडंडेंट बिट्स। तो मैंने डेटा को पहले ले लिया और रिडंडेंट बिट्स बाद में रखी, और ये सारा डेटा ट्रांसमिट कर दिया टू द रिसीवर। ऑन द रिसीवर साइड, what the receiver will do after receiving the data, it will divide the data into the form of rows and columns again, in the form of matrix again. तो अब उसने सारा डेटा है जो उसकी मैट्रिक्स क्रिएट कर ली। अब ये थी डुप्लीकेट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स जो उसको रिसीव हुई थी, उसने उसको अलग से स्टोर कर लिया। तो ये स्टोर करने के बाद उसने अब खुद कैलकुलेशन स्टार्ट करी इनकी रिडंडेंट बिट्स की। तो सारी पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करने के बाद द रिसीवर विल कंपेयर द LRC कंप्यूटेड बाय इटसेल्फ विद द LRC रिसीव्ड। अगर ये दोनों मैच कर गए, डेटा विल बी एक्सेप्टेड। बट अगर ये दोनों मैच नहीं किए, इट मींस देयर इज एन एरर इन द रिसीव्ड डेटा। तो ऑब्वियसली उसको या तो वो खुद ठीक करने की कोशिश करेगा या रिट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो अब इस सिस्टम में एक गड़बड़ है जी। वो गड़बड़ क्या है कि अब सपोज कीजिए, अगर आपने जब आपने डेटा को डिवाइड किया और उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए, डिफरेंट रोज बनाई, अगर दो रोज की कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स चेंज हो गई, तो आपको एरर डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हुआ क्या था पिछले केस में, हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे तो एक्चुअल डेटा में चेंजेस आए, हम इसको मार्क कर लेते हैं पहले कि ये एक्चुअली चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं। सो दिस इज द रिसीव्ड डेटा एंड दिस इज द ट्रांसमिटेड डेटा। तो ट्रांसमिटेड डेटा में आप देख सकते हो कि पहले में है 5 वंस। तो यहाँ पे एक तो गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, पहली 1 2 3 5, पहला ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक रिसीव हुआ। अब दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरे में है जी 0 0 1 1 0 0 1 1। तो अब ये देख सकते हो आप गड़बड़, 0 0 1 1 0 0। तो डेटा था ये, लेकिन डेटा हो गया चेंज। तो आपने वो एरर है यहाँ पे कैच कर ली। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंज हुआ और ट्रांसमिशन में। तो ऐसे आपने एरर डिटेक्ट कर ली। लेकिन अब गड़बड़ क्या है, इस सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है। अब सपोज कीजिए आपने दो ये ट्रांसमिट करे थे, आपके पास थे 8 बिट्स ट्रांसमिट करने के लिए। कितने बिट्स थे? 8। और मान लीजिए एक्चुअल डेटा था ये। तो आपने सबसे पहले इसको डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद पैरिटी बिट कैलकुलेट करी। नंबर ऑफ वंस इवन है 0, नंबर ऑफ वन ऑड है, देन फिर से ऑड। नहीं, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट ठीक कर लूं। दिस इज सो 1 1 0 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे ऑड, यहाँ पे ऑड, तो ये बन गई पैरिटी बिट। तो अब आपने जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट किया वो क्या था? ये। और इसके साथ आपने भेज दी अपनी पैरिटी बिट्स।
भेज दी जी। अब सपोज करो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एरर आ गई, ये बिट चेंज हो गई। तो बिट चेंज होके क्या हुआ, मैं वो नीचे लिख देता हूं। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये एरर्स आ गई। ठीक हो गया जी। अब रिसीवर को ये डेटा रिसीव हुआ और साथ में ऑब्वियसली पैरिटी बिट्स रिसीव हुई। तो अब उसने रिसीव करने के बाद क्या किया, इनकी फिर से मैट्रिक्स बना ली। अब उसने पैरिटी इसकी खुद कैलकुलेट करी। तो पैरिटी हो गई ये। अब उसने जो पैरिटी कैलकुलेट करी उसको कंपेयर किया रिसीव्ड पैरिटी के साथ। तो यहां पे इसके नीचे लिख लेते हैं इसकी कैलकुलेटेड पैरिटी। तो आप देख सकते हो कि ये पैरिटी मैच हो रही है, ये पैरिटी मैच नहीं हो रही, ये पैरिटी मैच नहीं हो रही, तो ये पैरिटी मैच हो रही है। तो इट मींस मैच नहीं हुई, तो इट मींस रिसीव्ड डेटा में क्या थी, एरर। तो अब आप ये देखो, सपोज करो अब क्या हुआ, दिस इज द ट्रांसमिटेड डेटा। अब लेकिन जो चेंज हुआ वो अलग ढंग से हुआ। वो किस ढंग से हुआ चेंज, तो अब चेंज जो हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। अब मैं रिसीव्ड डेटा लिख रहा हूं यहां पे। जैसे अब ये पहले था ये सेंट डेटा और ये था रिसीव्ड डेटा, और ये रिसीव्ड पैरिटी, दिस इज रिसीव्ड पैरिटी एंड दिस इज द पैरिटी कैलकुलेटेड एट द डेस्टिनेशन साइट। तो अब ये डेटा सेंड किया उसने, लेकिन जो रिसीव हुआ, मैं ये रिसीव नहीं हुआ, इसकी जगह पे मैं और कुछ लिख रहा हूं अब। तो डेटा रिसीव हुआ जी 0 0, या इसको ऐसे बोल देते हैं 0 1 0 0 1। ठीक हो गया जी। ऐसा करते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप तो कंफ्यूज हो ही रहे होगे। तो अब सपोज कीजिए दिस इज द सेंट डेटा। तो टोटल हमारे पास है 8 बिट्स। 8 बिट्स के हमने 2 रोज बना ली। इसकी पैरिटी कैलकुलेट करी। अब और ये डेटा हमने कर दिया ट्रांसमिट। तो डेटा जो ट्रांसमिट हुआ दैट इज 1100 1001, और कैलकुलेटेड पैरिटी वो क्या थी 0101। अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन गड़बड़ हो गई, ये डेटा हो गया रिसीव, जो हुआ ये कुछ इस तरह से हुआ, और साथ में रिसीव हुई पैरिटी। तो अब रिसीवर ने क्या किया, इसका वापस से कंस्ट्रक्ट कर लिया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसने कैलकुलेट करी पैरिटी। पैरिटी कैलकुलेट हुई 0 0 0। अब उसने कंपेयर किया इस कैलकुलेटेड पैरिटी को रिसीव्ड पैरिटी के साथ, इसके साथ। तो पहला मैच नहीं कर रहा, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा मैच नहीं कर रहा, फोर्थ मैच कर रहा है, लेकिन 2 बिट्स हैं जो वो मैच पैरिटी के नहीं करे, तो डेटा विल बी रिजेक्टेड। इट मींस सम एरर इज देयर इन द रिसीव्ड डेटा। अब उसको पता चल गया जी, जो डेटा सेंड हुआ था और जो डेटा रिसीव हुआ है, दिस इज सेंट एंड दिस इज रिसीव्ड, इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए उसने डेटा को कर दिया रिजेक्ट। अब सपोज करो जो डेटा रिसीव हुआ वो ये नहीं था, वो क्या हुआ ये देखिए। अब 1 0 0 0 1 1 0 1। अब उसने मैट्रिक्स फिर से कंस्ट्रक्ट करी। तो मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करी, 1 0 0 0 1 1 0 1। तो अब उसने पैरिटी कैलकुलेट करी 1 0 1 0। नाउ दिस ये कैलकुलेट करी पैरिटी और ये रिसीव हुई थी।
रिसीव क्या हुई थी 0101। अब देखो पैरिटी मैच कर गई ना, पैरिटी मैच कर गई, लेकिन जो डेटा सेंट हुआ था और जो रिसीव हुआ था क्या वो सेम है? नहीं, वो सेम नहीं है, क्योंकि दो बिट्स चेंज हुई थी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। बिट्स चेंज हो गई थी लेकिन फिर भी एरर डिटेक्ट नहीं हुई। क्यों एरर डिटेक्ट अब क्यों नहीं हुई? उसका रीजन है ये, जो बिट्स चेंज हुई हैं उनका नंबर सेम है। ब्लॉक 1 में भी दूसरे नंबर पे थी और ब्लॉक 2 में भी वो दूसरे नंबर पे थी। तो दोनों बिट्स चेंज हो गई, डिफरेंट ब्लॉक्स की सेम नंबर वाली बिट्स चेंज हो गई। अगर वो चेंज हो गई तो LRC will not be able to detect that। ये देखिए जैसे इन आवर एग्जाम्पल ऑल्सो, ये देखिए जो चेंज्ड बिट हैं, दो बिट्स यहां पे चेंज हो रही हैं, नंबर 1 वाली और नंबर 6 वाली। लेकिन जब वो कैलकुलेट करेगा पैरिटी, उसकी कैलकुलेटेड पैरिटी है जो दैट विल बी मैच्ड विद द रिसीव्ड पैरिटी एंड इट विल एक्सेप्ट द डेटा। बल्कि एक्चुअल में केस ये नहीं है, पैरिटी तो मैच कर गई है लेकिन जो डेटा रिसीव हुआ है दैट इज नॉट द सेम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। तो लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी होती क्या है, सबसे पहले एक बार फिर से नजर उस पर डाल लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी हम क्या करते हैं, हम जो डेटा है हमारे पास एक्चुअल डेटा, we divide the data into the form of a matrix, it means in the form of rows and columns। हम फिर कॉलम वाइज पैरिटी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद उस कैलकुलेटेड पैरिटी को डेटा के साथ एम्बेड करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं। अब रिसीवर को दोनों चीजें रिसीव होगी, डेटा भी रिसीव होगा और पैरिटी भी रिसीव होगी जो सेंडर साइड पे कैलकुलेट हुई है। तो रिसीवर क्या करेगा, डेटा को फिर से मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेगा और उस पर खुद पैरिटी कैलकुलेट करेगा। अगर उसकी कैलकुलेटेड LRC रिसीव्ड LRC के साथ मैच कर गई तो डेटा विल बी एक्सेप्टेड, इफ इट विल नॉट मैच द डेटा विल बी रिजेक्टेड। तो क्लियर हो गया ये। लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर दो डिफरेंट ब्लॉक्स की सेम नंबर वाली बिट्स चेंज हो गई कॉलम वाइज तो पैरिटी तो सेम रहेगी, तो डेटा विल बी एक्सेप्टेड, लेकिन एक्चुअल डेटा चेंज हो चुका है। LRC विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट, क्योंकि LRC पैरिटी कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कॉलम वाइज। तो अगर डिफरेंट ब्लॉक्स की सेम नंबर की बिट्स चेंज हो गई, इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। ऑब्वियसली ये होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होती जाएंगी उतने ही मतलब बिट्स चेंज होनी है, तो फिर सारी की सारी बिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। और एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ है VRC और LRC में यही रहेगी कि सपोज करो, जरूरी तो नहीं एरर हर बार डेटा में आनी है, एरर तो पैरिटी में भी आ सकती है। अगर पैरिटी में ही एरर आ गई फिर तो किसी हाल में भी वो मैच नहीं करेगी। अगर वो मैच कर भी गई तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पैरिटी गलत हो चुकी है। तो इस केस में रीट्रांसमिशन ही बेस्ट ऑप्शन है। सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन। आज हमने डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। उसमें हमने डिस्कस किया हाउ इट वर्क्स। वी डिवाइड द डेटा इनटू द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर कॉलम वाइज पैरिटी कैलकुलेट करते हैं और डेटा के साथ हम बैठ करके ट्रांसमिट करते हैं। रिसीवर साइड पे रिसीवर फिर से डेटा से मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है, मैट्रिक्स से वो अपनी पैरिटी LRC अपना LRC कैलकुलेट करता है और वो अपना कैलकुलेटेड LRC को कंपेयर करता है रिसीव्ड LRC के साथ। if that will be matched, data will be accepted, otherwise data will be rejected। and the problem with the LRC is that if the two bits of the different blocks that have the same number, if those bits will be changed, the calculated parity will match the received parity, so the data will be accepted, but actually data has been changed, क्योंकि दो different blocks की same number वाली bits change हो गई थी, जिसके कारण parity तो same
आ गई, डेटा एक्सेप्ट भी हो गया, बट एक्चुअल में वो डेटा ठीक नहीं है. So this concludes our today's session. I hope you have no all of the concept has been clear to you. So thank you very much for joining today.